ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 30۔ اذلان اس وقت شوق کے عالم میں منہ پر ہاتھ رکھے زینی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا زینی یوں سب کے سامنے اس قسم کی بات کا اظہار کر دے گی۔ سمیٹیں ان کو، کفت ہو رہی ہے مجھے ان سے۔ اذلان کی سرد آواز کی بازگشت زینی کو پھر سے اپنی سماعتوں میں گونجتی سنائی دینے لگی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اذلان، خبردار، اگر تم نے میری بیٹی کو دوبارہ تنگ کیا تو یہ میری سب سے لاڈلی اور پیاری سی بیٹی ہے۔ آسماں بیگم نے مصنوعی خفگی طاری کرتے اذلان کو ڈپٹ کر رکھ دیا۔ ماما، اگر زینی بھابھی سب کچھ ہے تو ہم سب کا پیار کہاں ہے؟ علیان ہنستے ہوئے گفتگو میں اپنا لقمہ ڈالتے اذلان کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینی نے آنسو پیتے بے اختیار اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا، تبھی آہل دوڑ لگاتے وہاں آیا اور اذلان کی گود میں حق سے براجمان ہو گیا، جبکہ اینی اپنی معصومیت چھلکاتی نگاہوں سمیت زینی کے پاس آ گئی۔ زینی ان کی اپنائیت پر دھیمے سے مسکرائی اور پھر اس کے رخسار پر پیار کرتے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بیٹا جی، ایک ماں کے جتنے بچے ہوتے ہیں نا، اس کا دل بھی اتنے حصوں میں بٹا ہوتا ہے۔ وہاں ہر ایک بچے کی برابری کی سطح پر اپنی اپنی ایک الگ جگہ ہوتی ہے۔ حالات چاہے جو بھی ہوں، ماں کے پیار میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا۔ ویسے بابا، میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ماما کا سارا دل تو ہم بچوں کے پیار سے بھر گیا، آپ کے پیار کے لیے تو ان کے پاس صرف جگر اور پھیپھڑے وغیرہ ہی بچے، آپ انہی سے کام چلا لیں۔ علیان کے شرارتی انداز پر آسماں بیگم خفت کے مارے اپنا سر مزید نیچے جھکا گئیں۔ شرم کرو علیان، باپو تمہارا، بولنے سے پہلے کچھ تو خیال کیا کرو۔ اسکندر شاہ کی ڈانٹ سنتے علیان خجل بھرے انداز میں اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ علیان کی سب کے سامنے درگت بنتے دیکھ وہاں موجود گھر کے سبھی افراد اپنے ہونٹوں پر امڑتی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلے آ جائیں، ریڈی ہوتے ہیں، پھر فلائٹ بھی تو ہے ہماری، ٹائم سے ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے۔ زمل نے رسٹ واچ دیکھتے ان سب کو وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ آپ سب اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ دن اور رکے نا پلیز۔ ان سب کے یہاں آنے سے اذلان پیلس میں رونق کا سا سما بن گیا تھا۔ بس بیٹے، آفس کی مجبوری سمجھے، ورنہ ہمارا بھی کہاں دل کرتا اپنے بچوں کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانے کا۔ اسکندر شاہ نے مسکراتے اسے نرم لہجے میں وضاحت دی۔ آپ بچوں کو میرے پاس چھوڑ دیں، میں بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ دراصل ان کی وجہ سے مجھے بالکل بھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا۔ اذلان اور زینب کی نگاہیں ایک پل کے لیے آپس میں ٹکرائی ضرور تھیں، مگر وہ غیر محسوس انداز میں فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ میں رکوں گا زینی آنٹی کے پاس، پھر آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گی، ہے نا زینی آنٹی؟ آہل گرم جوش انداز اپناتے اذلان کی گود سے اتر کر فوراً زینی کے پاس پہنچ گیا۔ زینی کے لبوں پر بساختہ گہری مسکراہٹ رینگی۔ اذلان اس پل زینی کے مسکاتے چہرے پر سے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ بالکل، اپنے سپر ہیرو کے ساتھ کون بور ہوتا ہے بھلا؟ زینی کے ایک شانے کے ساتھ اینی لپٹی ہوئی تھی اور دوسرے شانے کے ساتھ آہل لپٹ گیا۔ زینب کو اپنی بجائے آہل کو سپر ہیرو کا خطاب دینا اذلان کی ازلی پوزیسونیس جگا گیا۔ وہ بھویں سینکڑے اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ زینب اس کی ترچھی نگاہوں سے انجان آہل اور اینی کے ساتھ ہی مگن تھی۔ آلی، نو آلی، پیچھے ہٹو، زینی مائن، یو گو بیک۔ اینی آہل کو زبردستی بازو سے پیچھے ہٹاتی سب کو کہکہ لگا کر ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سبھی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اینی کی یہ پوزیسونیس والی عادت بالکل اذلان سے ملتی ہے۔ اذلان کی طرح وہ بھی اپنی ہر چیز کے لیے حد سے زیادہ حساس ہو جاتی تھی۔ دیکھو پپو، اینی مجھے مار رہی ہے، آہل نے منہ بسوڑتے زمل کو اس کی شکایت لگائی۔ بری بات اینی، سوری بولو بھائی سے۔ زمل نے اینی کو ہی زینی کی گود سے اٹھا لیا تاکہ ان دونوں کا سرے سے ہی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اینی اپنی بھیگی آنکھوں سمیت اب آہل کو زینی کی گود میں بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ نو نو چھوری، آلی بیڈ، آلی مائن۔ اینی مزید چڑھتے ہوئے اپنا رخ باقاعدہ دوسری طرف موڑ گئی۔ آجا میرے بیٹے، تو میرے پاس ہی آجا، یہ آج کل کی لڑکیاں تجھے اور تیرے سیدھے سادے بابا کو بالکل گھاس نہیں ڈالتی۔ آہل کو اداس ہوتے دیکھ علیان نے ہنستے ہوئے اپنے بازو آ کیے اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ اس کی طرف جانے کے بجائے سیدھا اذلان کے پاس پہنچ گیا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے کندھے پر بٹھائے جھولے دینے شروع کر دیے۔ وہ ساتھ ساتھ گدگدی کرتے اسے ہنسانے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ آہل کو اتنا ہنستے دیکھ اینی بھی سب کچھ بلائے اذلان کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی اذلان کی ٹانگوں سے لپٹی انہی جھولوں کی فرمائش کر رہی تھی۔ ان بچوں کی نوک جھونک پر سبھی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ علیان بھائی، عائشہ بھابی نے یہاں ہم سب کو لینے بھیجا اور ہم خود یہیں آ کر باتوں میں لگے۔ زمل نے کچھ یاد آنے پر باقاعدہ اپنے سر پر بھی چپت لگائی۔ ہاں یار، میں تو بالکل ہی بھول گیا،
चलो आहिल बेटे रेडी होते हैं, फिर कल से आपको स्कूल भी तो जाना है। अलियान भी हड़बड़ाते फ़ौरन अपनी जगह से उठ गया। ओके बाबा। आहिल को इस वक्त एनी के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था, मगर आलियान की आवाज़ पर अब वो भी एनी का हाथ पकड़े जिमल की तरफ आ गया। सब लोग धीमी चाल चलते दाखिली दरवाजे की राहदारी की जानब मुड़ गए। ज़ैनब आप मेरा ड्रेस तैयार करके रखे, मैं तब तक शावर ले लूँ। ज़ैनी को सबकी हमराही में लाउंज में जाता देख अजलान इसे बुलंद आवाज़ में पुकारते इसका जवाब सुने बिना ही अपने कमरे में चला गया। जी। अजलान की संजीदा आवाज़ पर ज़ैनी इस्तफसारिया अंदाज में कंधे उचकाती खुद भी अजलान के ताक़ुब में चली गई। अजलान तो हमेशा खुद ही अपना ड्रेस सेलेक्ट करते, आज इन्हें क्या हुआ? ज़ैनी अजलान को ड्रेसिंग मिरर के सामने मोबाइल यूज़ करते देख आहिस्तगी से बड़बड़ाती ड्रेसिंग रूम में चली गई। ये आपका ड्रेस। ज़ैनी ने काफ़ी देर सोच विचार के बाद बिलाखिर इसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट किया और इसे बेड पर सलीके से फैला दिया। वो खाली हैंगर वापस ड्रेसिंग रूम में रखने चली गई। आपने तो डरा ही दिया मुझे। ज़ैनी ड्रेसिंग रूम का स्लाइड डोर बंद करती वापस कमरे में आने लगी थी कि अचानक अपने सामने अजलान को खड़ा देख बेख्तियार इसका हाथ दिल के मुकाम पर आन ठहरा। वो उड़ती रंगत समेत अपना रुका सांस बहाल करने की तगवदू में लगी हुई थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अजलान की पुरतपिश निगाहें ज़ैनी के वजूद पर लर्ज़ा तारी कर रही थी। सुना है काफ़ी शिकायतें हैं आपको मुझसे। अजलान की आंखों में इस वक्त जज्बात का एक ठाठे मारता समुंदर बह रहा था जिसकी मौजें ज़ैनी को अपने हिसार में जकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। ज़रा मुझे भी तो पता चले आखिर क्या क्या शिकायतें हैं आपको मुझसे। ज़ैनब को झुकी निगाहों समेत बिना जवाब दिए साइड से गुजरता देख अजलान ने स्लाइड डोर की दाहिनी जानब पर दीवार पर हाथ रखते इसका रास्ता मसदूद कर दिया। वो मैं तो बस ऐसे ही। ज़ैनी के लबों से बमुश्किल हकलाती आवाज़ बरामद हुई। अजलान की इतनी सी कुर्बत ने ज़ैनी के दिल की धड़कनों में अजब शोर बर्पा कर रखा था। इस पल इसे यहाँ खड़ा रहना दुनिया का एक मुश्किल तरीन अमर लग रहा था। बाई लॉन में तो आपके पास काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, यहाँ तो आपकी ज़ुबानी आपका साथ नहीं दे रही। ज़ैनी की हद दर्जा घबराहट अजलान को अजीब सा मज़ा दे रही थी। उसकी झुकी निगाहें इस वक्त ऊपर उठने से अनकारी हो चुकी थीं। अच्छा चले छोड़े, ये तो बताएं आपको मुझसे एक शिकायत है, ये काफ़ी ज़्यादा। अजलान ने बेख्तियार अपने नरम अंगूठे के लमस के ज़रिए इसका निचला लब दांत के सिरे से निकालते इसे मज़ीद ज़ख्मी होने से बचा लिया, क्योंकि ज़ैनी अजलान की पुरतपिश निगाहों की ताब ना लाते कन्फ्यूज़ अंदाज में मुसलसल अपना निचला होंठ कुचलने में मसरूफ़ थी। अजलान की इस जसारत ने ज़ैनी को शर्तर कैफियत में मुब्तला कर दिया। ज़ैनब मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। अजलान ने हलावत अमेज़ लहजा अपनाते इसे फिर से अपनी तरफ मुतवज्जा किया। काफ़ी ज़्यादा। ज़ैनी के लबों में हल्की सी जंबिश हुई। ज़ैनी की लंबी घनेरी पलकों पर रुका मोती जैसा आंसू मकनातीसी कशिश के ज़रिए अजलान को बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। ओके। सहरफी लफ्ज़ को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा गया। मादाम फिर तो मेरा ये भी जानने का पूरा हक बनता है वो कौन कौन सी शिकायतें हैं ताकि इन्हें दूर किया जा सके। वो अजलान की दिलफ्रेब मुस्कुराहट इसे मज़ीद खुद में सिमटने पर मजबूर कर रही थी। हाँ मैं सुन रहा हूँ। अजलान को उसका शर्माया घबराया रूप सीधा अपने दिल में उतरता महसूस हो रहा था। वो नूरी आंटी। ज़ैनी अचानक रास्ता बनाती साइड से गुजर गई। नूरी आंटी? उनसे क्या शिकायत है आपको? अजलान ने हैरत के समुंदर में गोताज़न सवालिया अंदाज में अपने हाथों को हवा में लहरा दिया। अजलान बेटे ये आपका जूस। ज़ैनी ने झिझक भरे अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी अजलान को अपनी समातों में नूरी आंटी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो इन दोनों की बातों से अनजान इस वक्त अपने झुके सर समेत डिश को ड्रेसिंग मिरर के सामने मौजूद टेबल पर रख रही थी। अस्सलाम वालेकुम नूरी आंटी। ज़ैनी को आज नूरी आंटी का यहाँ आना किसी नेमत से कम नहीं लग रहा था। वो नूरी आंटी को पहली ही नज़र में खुले दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अंदर कमरे में आते देख चुकी थी। वालेकुम सलाम। जीती रहो ज़ैनी बेटे, ये ऑरेंज जूस अजलान को दे देना आप। नूरी आंटी खुश दिली से मुस्कुराते इसके सर पर दस्ते शफकत रखते नरम लहजे में गोया हुई। वो खुद ही ले लेंगे, हम चलते हैं। ज़ैनी जान छुड़ाने के अंदाज में उनके साथ ही बाहर चली गई। ज़ैनी के इस जुमले को सुनते अजलान के लबों को बेख्तियार धीमी मुस्कान ने आन छुआ। ज़ैनब आपका तो पता नहीं, लेकिन आज से मुझे ज़रूर नूरी आंटी से शिकायत हो गई है। अजलान मुबहम मुस्कुराहट समेत ऑरेंज जूस के सिप लेने के साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था। ज़रार इस वक्त पोर्च में खड़ा मुलाजम से सारा सामान मुख्तलिफ कारों की डिग्गी में रखवा रहा था। क्या हुआ आलियान भाई, अकेले खड़े ही मुस्कुराए जा रहे हैं?
जिमल ने अपना पर्स फ्रंट सीट पर रखते हुए साइड डोर थामे आलियान को बगौर देखा, जो इस वक्त कुछ फासले पर खड़ा धीमे से मुस्कुराए जा रहा था। एन इसी वक्त फातिमा और ज़ैनब भी आहिल और एनी का हाथ थामे इनके पास ही आकर खड़ी हो गईं। कुछ नहीं होना, क्या वो मेरा दोस्त है ना अज़हर, बहुत जल्द शादी करने का इरादा रखता, अभी मुझसे पूछ रहा था कि उसे किस किस्म की लड़की से शादी करनी चाहिए। मुझे बस इसी बात पर हंसी आ रही है, मैंने कौन सा लड़कियों में PhD कर रखी है जो इसे इस बारे में कोई मुफीद मशवरा दूंगा। आलियान ने हंसते हुए हाथ में पकड़ा मोबाइल वापस कोट की जेब में डाल दिया। चाचू आप उनसे कहें लड़की हमेशा वफादार होनी चाहिए, ये ना हो कि पहली मोहब्बत को बेवफाओं की तरह बुलाए किसी दूसरे शख्स की तरफ ऐसे जल्दी से कदम बढ़ा दे जैसे इसकी ज़िंदगी में पहली मोहब्बत की तो कोई ख़ास वक़्त ही नहीं थी। ज़रार का अंदाज़ मैनी खेज था, इसकी सर्द निगाहों का मरकज़ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फातिमा का झुका चेहरा ही था। ज़ैनी चूँकि नीचे झुकते हुए आहिल के शूज़ की स्ट्रिप्स बंद कर रही थी, इसलिए वो ये सब नोटिस नहीं कर पाई। इसकी कड़वी कसीली बातें सुनते फातिमा की झुकी निगाहें बेख्तियार ऊपर कोट गईं। इसे इस पल ज़रार की आंखों में अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ हकारत नज़र आ रही थी। आलियान को लगा वो अपनी माँ अलीना की वजह से ऐसा कह रहा है, लेकिन ये तो फातिमा जानती थी कि ज़रार ने ये सारी तलख बातें सिर्फ़ और सिर्फ उसे सुनाने के लिए ही की हैं। जिमल ज़रार की निगाहों की बोली तक को पढ़ने का हुनर जानती थी, इसलिए तो ज़रार का रवैया देख एकदम नादम सी होगी। सबकी मौजूदगी की वजह से इसने ज़रार की बात का असर ज़ाहिर करने की खातिर एक नया मौजू छेड़ दिया। कुछ दिनों के लिए ज़रार तो यहीं अज़लान पैलेस में ही रहने वाला है, एक ही घर में रहते इन दोनों का आमना सामना होना तो एक यकीनी बात है। ये इन दिनों फातिमा भाभी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करेगा। अंदर ही अंदर जिमल को ज़रार का इस कदर तज़हीक कमीज़ लहजा गहरी सोचों में मुब्तला कर चुका था। घर के बाकी अफराद भी इस वक्त पोच में जमा हो चुके थे। अब वो सब एक दूसरे से मिलते एयरपोर्ट जाने के लिए कार में बैठ रहे थे। फातिमा ने कमाल ज़बत का मुजाहरा करते कुछ देर पहले की गई तज़लील के आसार अपने चेहरे पर ज़ाहिर नहीं होने दिए। अज़लान के फैंस की वजह से सिकंदर शाह ने इसे एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने से खुद ही मना कर दिया, इसलिए अज़लान ने यही मुसाफा करते इन सबको अशफाक के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना किया, क्योंकि अफान मीटिंग अटेंड करने के बाद सीधा एयरपोर्ट ही पहुँचने वाला था। ज़ैनी जज्बात के ज़ेरे असर अपनी पूर्णम निगाहों समेत फातिमा के शाने के साथ लगी हुई थी। फातिमा की आंखों से भी बेख्तियार आंसुओं का सेल रवा हो गया, क्योंकि ज़रार के तंज़िया वार इसे अपने जहन के पर्दे पर किसी भारी हथौड़े की मान कारी ज़रबें लगाते महसूस हो रहे थे। फातिमा और ज़ैनब को आपस में मगन देख अज़लान आहिस्तगी से मुस्कुराया और फिर नफ़ी में सर झटकते ज़रार के साथ दाखिली दरवाज़ा अबूर करता घर के अंदर चला गया। अफान एयरपोर्ट का सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ही वहाँ से निकला था। रात के इस पहर लाउंज में किसी को मौजूद ना पाकर इसके कदम बेख्तियार अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आहिस्तगी से डोर नॉब घुमाते जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देख इसकी पलकें चंद सानिये तक झपकने से इनकारी हो गईं। फातिमा इस वक्त इर्द गिर्द से बेनियाज घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी शिद्दत से रो रही थी। फातिमा, इसकी घुटी घुटी सिसकियाँ इसके नरमो नाजुक वजूद पर लर्ज़ा तारी कर रही थी। तभी अचानक इसे अपनी स्मातों में अफान की नरम आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार इसका आंसुओं से तर चेहरा एक सेकंड के लिए ऊपर को उठा, मगर अगले ही पल वो फिर से अपना सर उसी पोजीशन में बाजुओं में पर टिकाती से मुकम्मल तौर पर छुपा गई। फातिमा, क्या हुआ, इतना रो क्यों नहीं है आप? अफान ने बेख्तियार अपने कदम आगे बढ़ाए और फिर फातिमा के बाजुओं पर अपना हाथ रखते इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दूर रहे मुझसे, हाथ मत लगाएं मुझे। फातिमा ने हतकमेज़ अंदाज में अफान का हाथ खुद से पीछे झटक दिया। फातिमा के इस रद्द अमल पर अफान का चेहरा आनत और तज़लील के एहसास से हद दर्जा सुर्ख पड़ गया था।